recording is already going on. Oh, because you are doing two recording are going on simultaneously. One recording, you can stop your recording because from your side. Yeah, okay. Yeah, I have started recording. Yeah. Yes. Okay. Yeah. Yes. So today's shloka is एक्चुअली ये श्लोक बीच में मतलब छूट गया था, मिस हो गया था मेरे से, इसलिए जब मैंने देखा कि अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और ये मतलब आई डोंट नो हाउ इज मिस्ड दिस श्लोक, सो दैट्स व्हाई आई एम कंटिन्यूइंग दिस श्लोक, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक. सो दिस इज 3.14. 13 के बाद मैं डायरेक्ट थोड़ा 21 पे चला गया. आई फॉरगॉट दैट श्लोक एक्चुअली. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो अन्नाद. Okay, so let me just start with my prayers. Om Agyanti Mirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumritam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Namne. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Destarane. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakti Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Okay. हरे कृष्णा. तो टुडे श्लोका 3.14. अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी केयरफुली. ऑल लिविंग बॉडीज. अच्छा, someone can read translation immediately. Who will read? Subhashish, you can read. Yes. Yes. जी प्रभु जी. थोड़ी सी ट्रांसलेशन तो. Yeah, only translation. Yeah. जी. All living bodies subsist on food grains, which are produced from rains. Rains are produced by performance of yajna, that is sacrifice, and yajna is born of prescribed duties. Yes, very nice. So all of you know very well what is the topic of today's class. देखिए, how foodstuff, rains, yajna and prescribed duties means karma, they are interrelated. इस श्लोक से ये समझ में आ रहा है कि यस, कैसे हमारा foodstuff जो हम खाते हैं, अन्न, rain, then yajna, sacrifice and prescribed duties, how they are interconnected, they are interrelated with each other. Okay, इसको purport से हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे. यहाँ से कोई पढ़ सकता है? Because you can read it from here. The Supreme Lord. The Supreme Lord, who is known as the Jnana Purusha, or the personal Yajna Purusha, or the personal beneficiary of all sacrifices, is the master of all demigods who serve him as the different limbs of the body serve the whole. Demigod like Indra, Chandra and Varuna are appointed officers who manage material affairs, and the Vedas describe sacrifices. Vedas direct sacrifices. Direct sacrifices to satisfy these demigods, who that then may be pleased to supply air, light and water sufficiently to produce food grains. बस stop. Yeah. तो यहाँ पे क्या बोला, ये चीज मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की है कि हाउ विष्णु इज द यज्ञ पुरुष. जो भी हम यज्ञ परफॉर्म करते हैं उसका अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन है? अल्टीमेट भोक्ता, अल्टीमेट प्रोप्राइटर, एंजॉयर कौन है? विष्णु और कृष्णा, राइट? दैट इज व्हाई द सुप्रीम लॉर्ड इज आल्सो नोन एज यज्ञ पुरुष. यज्ञ पुरुष मींस एंजॉयर ऑफ दैट यज्ञ, like bhoktaram yajna tapsam sarvlok maheshwaram. I have chanted, I have recited this sloka so many times, right? Because this is the substance of this whole Bhagavad Gita. Actually, this sloka is the soul of that Bhagavad Gita.
Bhoktaram yajna tapsam. And by this sloka, we know that it is proven that yes, Krishna is the supreme personality of Godhead. अगर किसी को कोई डाउट है कि कैसे कृष्णा है, तो इस श्लोक से ही प्रूव हो जाता है कि यस, कि कृष्णा इज द ओनली सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड. व्हाई? बिकॉज़ ही इज हिमसेल्फ टेलिंग दैट कि यस, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द एंजॉयर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पेनांसेस, सैक्रिफाइसेस, ऑस्टेरिटीज. भोक्ताराम यज्ञ तपसाम. यज्ञ मींस सैक्रिफाइसेस एंड तपसा मींस ऑस्टेरिटी. सो आई एम द एंजॉयर, आई एम द ओनली एंजॉयर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइसेस एंड पेनांसेस. सर्वलोक महेश्वरम. Sarvalok Maheshwaram. Sarv means all types of planets. I am the supreme personality of all types of planets. Right? Sarvalok Maheshwaram. Suhridam Sarvabhutanam. Suhridam means supreme well-wisher of all living beings, of all living entities. Suhridam Sarvabhutanam. Gyatva Mam Santim Rachiti. One who knows these three things, he will be in peace. Right? So this sloka is called the peace formula. Right? Remember this sloka. This sloka is called peace formula. क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को पीस चाहिए तो इस श्लोका को याद कर ले. राइट? उस श्लोका को याद करने का मतलब क्या है कि ये तीन चीजें जान ले. अगर कोई व्यक्ति ये तीन चीजें जान लेता है तो वो हमेशा फिर कभी bewildered होगा नहीं, कभी कोई परेशानी होगी नहीं उसके जीवन में. ऑलवेज ही विल बी इन रियल हैप्पीनेस, रियल जॉय, ऑलवेज सच्चिदानंद. व्हाई? बिकॉज अभी परेशानी क्यों हो रही है? क्योंकि जैसे भगवान पहले क्या बोल रहा है कि आई एम द प्रोप्राइटर, लेकिन लिविंग एंटिटी क्या सोचता है? नो नो, आई एम द प्रोप्राइटर. तो यहाँ से कट गया. समझे बात? फिर दूसरा, फिर वो क्या बोल रहे हैं? सर्वलोक महेश्वरम. आई एम द सुप्रीम लॉर्ड. बट लेकिन लिविंग एंटिटी क्या सोच रहा है? नो, आई एम द लॉर्ड, और आई एम द लॉर्ड, आई एम द लॉर्ड, आई एम द मास्टर. तो यहाँ से वो कट गया. फिर सुहृदम सर्वभूतानाम. एंड कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी, एंड कृष्णा इज प्रेजेंटेड इन एवरीवन's heart, in everyone's heart as the super soul, as a Paramatma. So he knows of everyone's mind what is going on. जैसे सपोज हिमांशु खुद जानता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है. राइट? सुभाषिस को पता है मेरे मन में क्या चल रहा है, लेकिन सुभाषिस ये नहीं जान सकता है कि हिमांशु के मन में क्या चल रहा है, और हिमांशु ये नहीं जान पाएगा कि सुभाषिस के मन में क्या चल रहा है. लेकिन कृष्णा को पता है कि सुभाषिस और हिमांशु दोनों के मन में क्या चल रहा है. व्हाई? बिकॉज सेम पर्सन, सेम कृष्णा is situated in Himanshu's heart and Subhashi's heart. Right? Not only two, but all living entities of the whole world. Right? Same person is present. That is, यही रीजन है कि वो भगवान हमारे मन को जानते हैं, क्योंकि वही तो हर व्यक्ति के मन में बैठे हैं ना, सुपर सोल के फॉर्म. दैट इसलिए उनको क्या बोला गया है? सुप्रीम वेलविशर, सुप्रीम वेलविशर. तो अगर कोई व्यक्ति तीन चीजें जान लेता है तो वो हमेशा हमेशा पीसफुल रहेगा. राइट? क्योंकि उसको पता चल गया कि ओ नो नो, आई एम नॉट मास्टर, कृष्णा इज द मास्टर एंड ही इज द सुप्रीम प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग. So everything should be used, everything must use in the service of Krishna, because everything is meant in the service of Krishna. Everything is belong to Krishna. Isa vasemidam sarvam yat kinchit jagat. These two slokas I quoted every time, because somehow or other किसी न किसी प्रकार से घूम फिर के वो point इसी पर आ जाते हैं. Right? So these two slokas I've chanted so many times. Right? So these two slokas is very important. तो ठीक है. तो इस तरीके से बोल रहे हैं कि कृष्णा इज द यज्ञ पुरुष, मतलब जो भी यज्ञ सैक्रिफाइस किया जा रहा है उसका अल्टीमेट भोक्ता कौन है? कृष्णा. भले ही वो किसी पर्टिकुलर डेमिगॉड्स के लिए किया जाता हो, बट स्टिल अल्टीमेटली वो किसको ट्रांसफर किया जाता है? सबसे पहले विष्णु के लिए. देन इट कम्स आफ्टर कन्वर्टिंग प्रसाद, देन ऑल डेमिगॉड्स टेक इट एज अ प्रसाद. राइट? तो सबसे पहले वो डायरेक्ट विष्णु के पास जाता है, फिर जो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो प्रसाद के रूप में ये लोग डेमिगॉड्स वगैरह यूज करते हैं उसको प्रसाद के रूप में. So this is the difference between demigods and supreme personality of Godhead. Right? So he is the master of all demigods. यहाँ लिख रहा है ना कि he is the master of all demigods. Like Brahma, Shiva, Lord Shiva, Lord Indra, Varuna, Chandra. These all are demigods actually. But Krishna is the supreme personality of Godhead. Right? Supreme personality of Godhead. That is why भगवद गीता में कहीं कृष्ण वाचा नहीं लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? भगवान, श्री भगवान वाचा. क्यों? जानबूझ के लिखा गया है ताकि लोग समझ पाए कि नो, कृष्णा इज द नॉट डेमिगॉड, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड. इसलिए भगवान लिखा जा रहा है. भगवान उवाचा, कृष्ण भगवान है. सो दिस इज द थिंग. यस, ये कोई पढ़ सकता है? प्रमोद, यू कैन रीड इट, दिस हाइलाइटेड पॉइंट. क्विक, वेरी क्विक. When Lord Krishna is worshipped, the demigods who are different limbs of the Lord are also automatically worshipped. Therefore there is no separate need to worship the demigods. For this reason, the devotees of the Lord who are in Krishna consciousness
offer food of Krishna and then eat. Yes, continue. A process which nourishes this body spiritually. By such action, not only are part sinful reactions in the body one sequence, but the body becomes immunized to all Immunized. immunized to all contamination of material nature. Yes. Okay. Wait. ठीक है, let me describe this. Very important actually. मैंने इसको क्यों हाईलाइट किया है, क्योंकि इसको एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो भी आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है उसको नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। इसमें बोल रहा है कि लॉर्ड कृष्णा इज वर्शिप्ड, जब भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, जब भगवान की वर्शिप की जाती है, देन द डेमिगॉड्स हु आर डिफरेंट लिम्स ऑफ द लॉर्ड आर ऑटोमेटिकली वर्शिप्ड। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो सारे देवी देवताओं की अपने आप पूजा होती है भाई, क्योंकि दीज आर द डिफरेंट लिम्स ऑफ द लॉर्ड। जैसे कि जब शरीर पेट के अंदर जब खाना चला जाता है तो सारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं सब जगह अपने आप एनर्जी मिल जाती है, सारी पार्ट्स को अपने आप एनर्जेटिक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पेट जो वो बॉडी का हेड है, वो सेंटर पॉइंट है, तो जब सेंटर पॉइंट में एनर्जी जब मिल जाती है तो वहां से सब जगह ट्रांसफर हो जाती है। और दूसरा एग्जांपल दिया था कौन सा, कि वृक्ष की जब रूट में जब पानी डाल देते हैं तो सारे वृक्ष के जितने भी पार्ट्स हैं, टहनीज हैं, फ्लावर्स हैं, ठीक है, शाखाएं ये हैं, ब्रांचेस, सब ऑटोमेटिकली नरिश हो जाते हैं, राइट। तो सिमिलरली सो कृष्णा इज द belly of that body and Krishna is the root of that tree. Okay, so he is the main part, center point, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। इसलिए therefore there is no need to separate worship of demigods। तो यहाँ पर डायरेक्टली मना किया जा रहा है कि अलग से पूजा है ही नहीं ना, क्यों करेंगे भाई? तुमने अगर रूट को पानी नहीं दे रहे हो, तुम केवल अलग ब्रांच को पानी दोगे, टहनी को पानी दोगे, तो उससे क्या होगा? ट्री सूख जाएगा ना, क्योंकि रूट में पानी नहीं जा रहा है। सो दैट इज कृष्णा इज द रूट ऑफ दैट थिंग। ओके, and these all demigods, they are the servant, they are the eternal servant of Krishna. So when Krishna is satisfied, then all demigods are automatically satisfied. Simple example आप देख लीजिए, like Hanuman. So Hanuman is a eternal servant of Lord Ram, right? So हनुमान की प्रसन्नता कब है? हनुमान की प्रसन्नता कब, मतलब हनुमान जी कब ज्यादा प्रसन्न होंगे बताइए? जब हनुमान जी की पूजा करेंगे, जब लॉर्ड राम की पूजा करेंगे तब ज्यादा, क्योंकि हनुमान का स्थान हमेशा श्री राम के चरणों में है, हमेशा उनका केवल जीवन का एक ही, उनके लाइफ एंड सोल, हनुमान का लाइफ एंड सोल कौन है? श्री राम। उनका जीवन ही पूरा उनके चरणों की सेवा में है। तो अगर कोई व्यक्ति श्री राम की पूजा करता है या राम का नाम लेता है तो हनुमान जी अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, ओ मेरे प्रभु का नाम कोई बोल रहा है। समझे बात? हनुमान का नाम बोले से उतने प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई श्री राम का नाम बोलेगा तो हनुमान जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उनके मास्टर हैं। समझे बात? तो उसी प्रकार से कोई कृष्ण की जब पूजा करता है तो वहां की जितने भी डेमिगॉड्स हैं ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब उन्हीं के ही सर्वेंट हैं। दैट इज द रीजन। ओके, so that is why for this reason the devotees of the Lord who are in Krishna consciousness offer food to Krishna and take, right? So then after take, तो ये श्लोक हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यज्ञ शिष्टा संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंक्ते ते तो हम पापा ये पचन्ते आत्म कारणा। हाँ, कि जो व्यक्ति केवल खुद के लिए कुछ करता है, भगवान को भोग नहीं लगाता, वो केवल sin ही खाता है। But those who are practicing Krishna consciousness, those who are in Krishna consciousness, first of all they offer to Krishna, then they take remnants of Krishna, that is called Krishna prasad, right? So then after taking prasad they becomes completely free from all types of sinful actions। प्रसादे सर्व दुखानाम, जब कोई प्रसाद लेता है तो सारे प्रकार जितने प्रकार के डिजीज हैं सब कुछ चले जाते हैं, और all types of material desires they completely eradicated। Okay, so this is the power of prasad। So therefore before accepting the food stuff, first of all we should offer to Krishna, and that is called prasad। A process which nourishes the body spiritually, जो भी बॉडी को भी, मतलब हमारे अंदर जो लस्ट, प्राइड, एंगर, एनवी, इल्यूजन ये है, ये सब चला जाता है। Because Krishna Prasad is a non-different Krishna himself, both are same person। So why such action not only are past sinful reactions in the body when goes, ना केवल हमारी past sinful activity खत्म हो जाती हैं, बल्कि the body becomes immunized to all contamination of material nature। सब प्रकार कंटामिनेशन चला जाता है, राइट। यस, दिस ओके, दिस हु कैन रीड दिस फ्रॉम ग्रीन? हु इज एल्स? हिमांशु, कैन यू रीड इट? हिमांशु इज नॉट देयर। हु कैन रीड?
Jai Krishna, you can read it. Hare Krishna Prabhu. Yeah, Jai Krishna, please read it. When there is an epidemic disease, an antiseptic vaccine protects a person from the attack of such an epidemic. Similarly, food offered to Lord Vishnu and then taken by us makes us sufficiently resistant to material affection. And one who is accustomed to this practice is called a devotee of Lord. Therefore, a person in Krishna consciousness who eats only food offered to Krishna can counteract all reaction of past material infections which are impediments to the progress of self-realization. Yes, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, रीड इट. On the other hand, one who doesn't do so continues to increase the volume of sinful action, and this prepares the next body to resemble hawks and dogs. To support the resultant reaction of all sins, the material world is full of contaminations, and one who is immunized by accepting prasadam of the Lord, food offered to Vishnu is saved from the attack, whereas one who doesn't do so becomes subjected to contaminations. यस, वेरी नाइस. उस तरीके से इसमें क्या बता रहा है, अल्टीमेटली यहाँ पर प्रसाद का इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है कि किस प्रकार से कि जब प्रसाद जब व्यक्ति लेता है तो हर प्रकार के कंटामिनेशन से व्यक्ति बच जाता है, सेव हो जाता है. सो दैट इज द पावर ऑफ प्रसाद. ओके, सो बिफोर एक्सेप्टिंग एनीथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ऑफर टू कृष्णा, देन इट बिकम्स स्पिरिचुअलाइज्ड, मतलब फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ सिनफुल एक्शंस. तो अल्टीमेटली तो यहाँ पर इस श्लोक का पर्पस क्या है, कि क्या बताना चाहते हैं कि हाउ दीज फोर थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, राइट. इसमें क्या बोल रहे हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि, कि अन्नाद भवन्ति भूतानि, मतलब कि जब व्यक्ति अन्न खाता है तो उससे क्या होता है, अन्न किसके लिए बना हुआ है, लिविंग एंटिटी के लिए अन्न बना हुआ है, लिविंग एंटिटी के लिए. तो जब व्यक्ति ग्रेन जब खाता है तो बॉडी नरिश हो जाती है. और ग्रेन कहाँ से पैदा होता है, ग्रेन होता है कहाँ से, जब वर्षा होती है, राइट. ग्रेन होता है वर्षा से. तो यहाँ से तो ग्रेन किस पे निर्भर कर रहा है, वर्षा पर. तो वर्षा नहीं होगी तो ग्रेन नहीं पैदा नहीं होगा, समझ गए. फिर वर्षा किस पर डिपेंड कर रही है, वर्षा डिपेंड कर रही है किस पे, यज्ञ पे. जब व्यक्ति यज्ञ करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, तो उससे क्या होती है, रेन होती है. तो रेन इज डिपेंडेंट ऑन यज्ञ, राइट. और यज्ञ किस पर डिपेंड कर रहा है, कि जब व्यक्ति प्रेस्क्राइब ड्यूटी को सही से करते हैं. यज्ञ इज बॉर्न ऑफ प्रेस्क्राइब ड्यूटी. जब व्यक्ति अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी को सही से करते हैं तो फिर वो उसी को क्या बोला जाता है, यज्ञ. यज्ञ मीन्स व्हाट, इस चीज को हमने कितना डिटेल में चर्चा किया हुआ है. यज्ञ का मतलब क्या होता है, यज्ञ का मतलब होता है कि जो भी हम चीज कर रहे हैं वो कृष्ण की तरफ प्रोजेक्ट रहा है. हमारा जो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज है वो कृष्ण की तरफ रहा है, तो उसी को क्या बोला जाता है, यज्ञ बोला जाता है, राइट. मतलब वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज कॉल्ड यज्ञ. इन सिंपल वर्ड्स वी विल से वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज कॉल्ड यज्ञ. कोई भी चीज जिसका रिजल्ट हम किसके लिए दे रहे हैं, कृष्ण या विष्णु के लिए दे रहे हैं, जिसका रिजल्ट कृष्ण के लिए जा रहा है, दैट इज यज्ञ. So what is the yajna of this present age of Kali? What is the yajna? This Hare Krishna Mahamantra. जपा नाम यज्ञ अस्मि, यज्ञ नाम जपास्मि, यज्ञ नाम जपास्मि, कि सारे यज्ञों में मैं कौन हूँ, जप हूँ. इस कलयुग के लिए बेस्ट जपा क्या है, दिस हरे कृष्ण महामंत्र, राइट. तो इसलिए तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हर चीज जो है, मतलब किस पे डिपेंड कर रही है, क्या प्रेस्क्राइब ड्यूटीज पे. कि अगर हम अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज को अगर सही से करेंगे तो बाकी सारी चीजें अच्छी चलेंगी. इसलिए तो अर्जुन ने पहले मना कर दिया था फाइटिंग करने से, कि नहीं मैं नहीं लड़ूंगा. लेकिन कृष्ण बोला कि नो यू हैव टू फाइट ऑन बिहाफ ऑफ मी. तो जब अर्जुन ने जब मना कर दिया था पहले, इसका मतलब वो केवल खुद के लिए करना चाह रहा था. लेकिन जब कृष्ण ने बोला तो अभी क्या बन गया है, वो अभी वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी कन्वर्ट हो गया है. बिकॉज अर्जुन इज फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा, राइट. दैट इज कॉल्ड वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज कॉल्ड कर्म योगा. तो अभी वो क्या है, जब अर्जुन अभी कर रहा है, अपना कर्म कर रहा है, तो अभी फिर क्या है, उसके बाद वो फिर उसका जो कर्म है वो रेगुलेट हो गया है. अभी उसका कर्म क्या हो गया है, रेगुलेट हो गया है, बिकॉज नाउ ही इज परफॉर्मिंग यज्ञ. तो अभी उसका जो फाइटिंग करना है वो भी क्या बन गया है, वो यज्ञ की तरह हो गया है. क्यों, क्योंकि वो जो लड़ रहा है वो कृष्ण के बिहाफ में लड़ रहा है. सो नाउ हिज प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी इज कन्वर्टेड टू यज्ञ. तो जब यज्ञ होगा तो यज्ञ से क्या होती है, फिर वर्षा होगी, है कि नहीं. यज्ञ से फिर क्या होगी, वर्षा होगी. जब वर्षा होगी तो फिर क्या होगा, उससे अनाज उत्पन्न होगा. और जब अनाज उत्पन्न होगा तो उसको ये ह्यूमन बीइंग्स, जीव जंतु खाते हैं, नैरस होती है. तो यू सी नाउ दिस के
हाउ दीज फोर थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। तो बिगिनिंग पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? बिगिनिंग पॉइंट क्या है? व्हाट इज द ओरिजिन? ओरिजिन कहाँ है? ओरिजिन है यज्ञ, प्रेस्क्राइब ड्यूटीज, प्रेस्क्राइब ड्यूटीज। तो अगर हर व्यक्ति अपने एक्टिविटीज को रेगुलेट करके रखेगा और उसको कृष्ण को सेंटर में करके करेगा, तो उससे ही बाकी तीनों चीजों अपने आप जाएंगी, जैसे यज्ञ, रेनफॉल एंड ग्रेन, राइट। सो दिस इज द थिंग। इसलिए आप देखिए, जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि उसमें ब्रजवासी लोग हैं जो मतलब यज्ञ कर रहे थे, किसके लिए? इंद्र के लिए यज्ञ कर रहे थे। जैसे यज्ञ जब कर रहे थे तो इंद्र खुश होकर फिर वहां संवर्तक को भेजता है और वर्षा करा देता है। तो एक्चुअली ये होता था। अभी कलयुग में ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन पहले जितने भी अपने थे, द्वापर युग देख लीजिए, आप सत्ययुग देख लीजिए और त्रेता युग, इसमें क्या है, लोग पायस होते थे। कलयुग को छोड़ के बाकी जितने भी तीन एज हैं उसमें लोग पायस होते थे एक्चुअली। और पायस जितने लोग जितना ज्यादा पायस होंगे वो उतना अच्छे से उनकी मतलब एक्टिविटी भी अच्छी होगी, और वो अच्छी प्रकार की जब प्रेस्क्राइब ड्यूटीज में एंगेज होंगे तो फिर वो यज्ञ भी अच्छे से करेंगे, और यज्ञ करेंगे तो बारिश भी होगी। तो यही रीजन है कि मोर पीपल विल बिकम पायस, मोर रेन विल बिकम। लेकिन अभी क्या है कि और और लोग जितना प्रकार की सिंफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, जितना ज्यादा सिंफुल होते जाएंगे, उतने ये सब मतलब वर्षा भी देखो इरेगुलर क्यों हो रही है। मतलब देखो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि जब जरूरत है वर्षा तभी होती थी, राइट। या ऐसा बोल सकते हैं कि जब सीजन होता था तभी होती थी। बरसात के समय वर्षा होगी, सर्दी के समय में सर्दी, गर्मी के समय में गर्मी। लेकिन अभी जो कल में क्या हो रहा है, वर्षा कभी भी हो जाती है। सर्दी में भी पानी गिर जा रहा है, गर्मी में भी पानी गिर रहा है, और वर्षा में तो गिर रहा है। और अभी तो वर्षा भी नहीं हो रही है, और अगर हो भी रही है तो वो वेरी इरेगुलर, कुछ टाइम ही नहीं है, मतलब कभी भी हो जा रही है। क्यों हो रही है? बिकॉज nowadays no one is performing their prescribed duties. That is the main reason. No, varnashram system is completely lost, right? कोई व्यक्ति ब्राह्मण की तरह काम नहीं कर रहा है, क्षत्रिय की तरह काम नहीं कर रहा है, वैश्य की तरह काम नहीं कर रहा है, इस तरीके से। और ब्राह्मण इज कंप्लीटली लॉस्ट nowadays. ब्राह्मण इज एक्टिंग लाइक शूद्रास everywhere, right? कलौ शूद्र संभवा। So this is the thing. वर्णाश्रम सिस्टम लॉस्ट हो गया है. That is why people are suffering again and again with so many disease and so many natural disasters. That is the reason, because people are not doing their prescribed duties nicely, or you can say because people are not Krishna consciousness. That is the main reason. तो इसलिए जब तक व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस नहीं होंगे, तब कृष्णा कॉन्शियस नहीं हो रहा है, मतलब यज्ञ परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, तो कैसे रेन होगी? पॉसिबल नहीं है, राइट। सो दिस इज द थिंग। सो यज्ञ डिपेंड्स ऑन पाइटी। लोग जितना ज्यादा पाइटी होंगे, पायस होंगे, उतना ज्यादा ये होगा। यही रीजन है। तो इसलिए आप देखिए, इवन प्रैक्टिकली हमने देखा है, प्रैक्टिकली जगन्नाथ रथ यात्रा जब होता है, तो जगन्नाथ रथ यात्रा के समय भी मतलब हर साल ऐसा होता है। प्रैक्टिकली हमने देखा है हम लोग तो, क्योंकि जब इधर जगन्नाथ रथ अभी तो 3 साल से नहीं हो पा रहा है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे भी, जैसे जब मैं पहले उज्जैन में जब था, तो वहां पर भी रथ यात्रा निकलने की 1-2 घंटे पहले ही हम लोग संकीर्तन शुरू कर देते थे। और जैसे संकीर्तन शुरू करते थे तो इमीडिएटली वर्षा होके पहले पूरा रोड धुल जाता था। और हमें हर साल ऐसा होता है, हर साल, एवरी ईयर, हर साल ऐसा होता है। रथ यात्रा निकलने के जस्ट पहले जो है बारिश होती है। तो ये है क्यों? क्योंकि हरिनाम संकीर्तन इतना पावरफुल है, राइट। तो इसलिए जब व्यक्ति कृष्ण की तरफ प्रकट होंगे, उनके कर्म जो है कृष्ण की तरफ प्रकट होंगे, तो ऑटोमेटिकली होगा। और प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक बार एक रियल इंसिडेंट है। जब एक बार एक महाराज प्रभुपाद के डिसाइपल थे, प्रभुपाद खुद ही, मतलब प्रभुपाद को जब पता चला कि कुछ एक ऐसा प्लेस था, मतलब कि जहां पर कोई था, रूस था या जापान, आई फॉरगॉट, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, कोई ऐसा था। तो वहां पर पता लगा कि यहाँ पे पिछले 2-3 साल से वर्षा ही नहीं हुई है। जब प्रभुपाद को पता चला तो उनको इनवाइट किया गया कि आप लोग अगर थोड़ा अगर हरिनाम संकीर्तन करेंगे तो हो सकता है कुछ हो जाए। तो प्रभुपाद फिर अपनी पूरी टीम को वहां पर लेके जाते हैं, और वहां पर कंटिन्यूअसली 2 घंटे जो है वहां पर हरिनाम संकीर्तन करते हैं। जैसे हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो फिर वहां पर बारिश हो जाना शुरू हो जाता है। दैट्स फैक्ट, रियल इंसिडेंट एक्चुअली। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हरिनाम संकीर्तन जो है इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल कर देता है। व्हाई? बिकॉज हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। और वर्षा का डिपार्टमेंट किसको दिया गया है? इंद्र को। इंद्र कौन है? कृष्ण के सर्वेंट हैं। तो जब भगवान का जब नाम हो रहा है, जब भगवान के गुणगान जब किया जा रहा है, तो इंद्र को तो भाग के आना पड़ेगा। समझे बात? बिकॉज इंद्र इज सर्वेंट, राइट, उसको डिपार्टमेंट दिया गया है। तो यही रीजन है एक्चुअली कि जब भगवान का जहां पे भी गुणगान किया जाता है, तो वहां पर सारे डिपार्टमेंट जो हेड हैं वो अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से करने लगते हैं। दिस इज द थिंग। इसलिए तो जब व्यक्ति अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी को अच्छे से करेगा, तभी ये सारी चीजें अच्छे से होंगी।
हाँ, नहीं तो अभी देखिए इतना ज्यादा सूखा, किसी लोगों के पास बहुत सारे लोग भूखे हैं, यहाँ पर खाने को नहीं मिल पा रहा है, लोग बहुत कई लोगों के पास पानी के लिए नहीं, पीने के लिए पानी नहीं है। आप देखो यहाँ तो ठीक है, इंडिया में तो फिर भी हर चीज की फैसिलिटी है। आप कहीं अगर विदेश चले जाओगे ना, तो वहां तो लोग मतलब क्या, नाली का जो पानी होता है ना, ड्रेन का, उसको भी मतलब वो प्यूरिफाई करके उसको रखते हैं। सोचो, नाली के पानी को, सुनने में कैसा लग रहा है, बट दिस इज फैक्ट, क्योंकि देयर इज वेरी वेरी लार्ज स्कैरसिटी ऑफ वाटर देयर। नहाने की बात तो तुम छोड़ दो, वहां पर वो लोग तो नहाते ही नहीं है वहां पर, है ना। हाँ, तो नाली के पानी को रखना पड़ रहा है, क्यों? रीजन यही है, बिकॉज पीपल आर नॉट कृष्णा कॉन्शियस, दे आर सिंपली इन्वॉल्विंग ऑल टाइप्स ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज। तो ये तो हो गई होगा। तो इसलिए आप सोच सकते हैं कि ये सब चीजें हैं जो नेचुरल इंसिडेंट है, कैसे दे आर डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड टू अवर एक्टिविटीज, एक्चुअली डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड, डायरेक्टली। तो अगर हम इन सब, अगर हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे, अगर हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं बनेंगे, तो वी विल सफर सफर एंड सफर, राइट। इसलिए somehow or other we have to become Krishna conscious. Then as soon as one become Krishna consciousness, then all these problems automatically solved, right? So Krishna consciousness is the only solution of all activities. तो अगर आप अच्छे से कृष्णा कॉन्शियस बनेंगे, अच्छे से भक्ति करेंगे, तो यही यज्ञ है। और जब यज्ञ होगा तो पानी भी गिरेगा, और बारिश भी होगी, बारिश होगी तो उससे अन्न भी होगा, और जब अन्न होगा तो सारे जीव जंतु आसानी से फ्लोरिश हो जाएंगे। So this is the purport of this shloka. थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Does anybody have any question? अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो जिन लोगों ने कल एग्जाम नहीं दिया है वो लोग रह सकते हैं, बाकी लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने एग्जाम नहीं दिया है वो लोग रहेंगे, और जिन लोगों ने एग्जाम दिया था वो छोड़ सकते हैं। तो मैं लिंक शेयर कर रहा हूं, तो वो लोग एग्जाम देके फिर लीव कर सकते हैं, ठीक है। So I am just sharing the link. बाकी लोग लीव कर सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। यस। Okay, so I have shared the link. Everyone now can start. जिसका होता जाएगा वो लीव करते जाना, ठीक है।